भवतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आपका वीडियो ऑफ हो गया है महाराज, वीडियो ऑन कर लीजिए। करो, शुरू करो। ओके, प्रणाम महाराज जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। प्रणाम महाराज जी। और मेरी ये फर्स्ट एफर्ट है, मैं चाह के भी इसको ज्यादा शॉर्ट नहीं कर पाई, जहां आपको लगे मुझे स्टॉप कर देना। ना ठीक है, चलने दो। वो 18 मिनट्स हो रहा है। हाँ 18 मिनट्स हो रहा है, बट फर्स्ट टाइम है तो थोड़ी सी एंजाइटी भी है। थैंक यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आपने टॉपिक दिया था स्ट्रेंथ, मैं स्टार्ट करती हूँ इसी से। इन द स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रेंथ इज मेन life force. Weakness has no place. Physical fitness is must to withstand the strength and struggles and strains of spiritual practice. Keep a positive attitude to your body because it's a divine temple. Keep body in good fitness, but do not identify yourself with it. Do some exercises because it's important come in the picture when you are in the midst of too many conflicts. Then strong physiques lead to gain ability and to practice concentration for a long time. Body is a vehicle to cross the ocean of worldly life. Take adequate balanced diet, no food or other indulgence. Strict continence is strongly needed for cool and strong brain, and it also helps to withstand prolonged meditation. It is a great source of joy to live in a healthy, fit and healthy body. A player seeker cannot have, don't have any idea about clean and pure mind and body. Though self-control and purity may be in the beginning cause little difficulties, but later on it becomes a source of great pleasure and happiness. Strong mind also is a need to accept high ideal and to pay a high price for it. Weak-minded people cannot do or take care of scarcities and struggles and sacrifices of spiritual life. Strengthen your mind, strengthen your will. And one of the tests of the mental strength is continued faith and steadiness in the practice, and firmly holding the spiritual ideal that I am a being who can achieve something in the world of spirit. A definite course of action, thinking, feeling and willing is must in time of is in the time of confusion and difficulties. It often happens that people's spiritual seekers start with the great goals. To succeed in the spiritual life, we need to keep mind and enormous willpower. The great masters as Sri Ramakrishna and Vivekananda have, in spite of failure or repeated failure, try to rise. And it is rarely that it goes a straight line struggle. All don't make any excuses. Keep rising after every failure. It gives a great mind and power of discrimination. Second of mental strength is the ability to take firm decisions. Lack of erode it is of no use. Be firm in small decision. Use intelligence, coordinating. Now, आवाज आ रही है? Yes. अब आ रही है। हाँ जी, हाँ आवाज जी, अच्छे से आ रही है। ठीक है. Good habits, strict routine and regulated life helps small work in daily life. Must be firm on mind ground. No second thought of confusion. No nagging.
decide at once. Ability to control even good thoughts. It's a compulsory to control the thoughts, even it may be good. It is a impulsive behavior. Control of a good or bad is needed. Steadily, power of control must be grown to gain mastery over the feeling. Be fully conscious be fully conscious. Good sentiments or experience must be retained in deep mind. Frequent expression of these will lose their motive power. What we gain from holy books and holy men must be retained within until they effect the necessary transformation of character within us. So is it is forbidden to discuss about dreams, experiences, and process of has nothing to do with the spiritual life. So spiritual experience must be strong and self-controlled about their spiritual emotions. Develop your mastery to control the sudden rise in the sentiments, though first sentiments. First of all, and Maharaj Ji said, first of all, store enough or accumulate enough with the great effort, then spend. Otherwise, you will end up in a failure. Fearlessness. There is another strength pillar, make us perfect balance between the overconfidence and extreme fearful state. As we know, there are dangers of high rising, but unnecessarily fear must be avoided. God vision alone can grant complete fearlessness. According to Upanishads, self-realization is the way to fearlessness, that complete understanding that I am Brahman. That self-realization is the way to fearlessness. सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? Fear of other person's opinion doesn't matter if you are fully convinced and trusted on the path you have chosen. जैसे ठाकुर जी बोलते हैं कि हाथी अपनी चाल चलता है और पपीज या डॉग कुत्ते क्या भौंकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. With inner passion of shame, hatred, fear, etc., there is no spiritual progress. You can't satisfy everyone. Just try to reflect God's glory within us. You will find change in the attitude of people automatically. Keep yourself in good balance when you tend to do good to others. We should be selfless, but take care that no one can take advantage of your attitude. We convince others with our strength. We must try to develop an artful attitude to the situation or people when we respond, and when to respond, retain your strength enough to show others that they will not dare to take advantage of your firmness of thought, your advantage of yours. Our firmness and thoughts and dignity, it is our strength. And one caution Maharaj Ji give that the strength cannot be used recklessly like a giant. Non-violence. Ahimsa is also a sign of strength. It may not be out of cowardness or fear. Real meaning of non-violence is greatest courage coupled with greatest love, where total absence of hatred must be there. As in Gita, Shri Krishna taught to Arjuna, maybe you had to fight, but do it without hating others. Hate and anger are as bad as attachment and lust. When you are on spiritual life, never try to pull leg of others in any way, never harm to the others. Overcome from the animal behavior where survival of the fittest operates. Move from the animal kingdom to the kingdom of Lord, where love and sacrifice is the law. Spiritual beings deal with the miseries and problems with the others, on problems of others in a very sensible way. They do it most polite way, as well as they avoid to be drawn into the worldliness in the name of compassion. Spiritual aspirant must open himself to the power of knowledge, not to the ignorance. As Thakur said, hiss but no bite. True ahimsa is practiced by step by step.
Mind must be clean completely from impurities. Practically application and the theory of ahimsa in one's life are totally wide apart. In Upanishads, as you read, that self-realization is the basis of true ahimsa. When one who realizes self, he cannot hate anyone. During initial stages of spiritual life, we must be extra careful that too soft and yielding attitude can lead to many troubles. There must be a tremendous strength to face the evil of words. Do not compromise your spiritual progress in the softness and sentiments. Strictly remove all traits of violence, anger, hatred. Outward calm and inner burning is more dangerous to us. Practice non-violence first within, then can be done strong. This can be done only by strong-minded people. Destructive aspect of truth. Our heart must be a crimination ground of all negative emotions and impurities. Everlasting burning desire or constant desire to worship God is the true worship. It should never be frightened to us. Problem is that we seek God for worldly things, sense players. If boons are from God, then what about the when we think about Him as a destroyer? At that point, we afraid God is God in the form of creator, preservator, or destructor. We must accept and above all the God who is none of all these. So the present reaction against the religion of merely good God is to be appreciated. It will be throw him overboard. But when we give the modern mind the real God concept, it will be in the most cases accept him. All three form of God is mother again in the absolute, in her absolute aspect. Beyond all these is Shiva. Mother is dancing her mad play of creation, preservation, and destruction on Shiva, who is lying under her feet, motionless as a dead. What a deep symbol of truth all these are. When aspirant cling to the mother, there is no fear of death. Life, real play of mother is to be seen in the crimination ground. Yes, it is as real as nursery. Worldly attractions brings always misery along with. Mental distress and suffering are more than the physical distress. Go beyond happiness and misery to realize the truth, which can be attained by transcending them both. Never stop taking mother's name, come what may. We must be fully prepared to transcend both the good and terrible aspect of God if we really wish to reach him and acquire peace and blessedness. All false ideas and desires fade away if we are able to stand with the destructive aspect of truth. Then the truth reveal itself. We have many of methods given by our great saints, but we are so lazy that always going on to postpone. Gurvinder, Own within 4 minutes you have to finish. on driving intellect. Hanji sir. Power and love extra. We highly try to hug them and they till torn away from us. Here Maharaj Ji said, if you truly want to follow spiritual life, none of from all dreams, gross, subtle, good ones, there must be strict cleaning and alignment within us. Come out with the strong, new, bold, strong, recreated being. Only then you can attain truth. In Yes. Vedanta, no place for weakness. Who constantly dwell on Okay. their weakness. We must. For- Hanji. 4 minutes more, na? नहीं 2 मिनट बचा. Okay. We must claim 2 our minutes. birthrights. We must claim our birthright that are purity, love, and freedom.
Then think of Atman. Atman is standing behind our body and mind. When some extent we keep apart from ourself, false personality, identify ourselves with spirit, we get fearlessness and strength, peace and purity. When a person is extrovert, he becomes sinner, and when he withdraws inside, he becomes saint. The secret of success is ethical and spiritual life is to look upon own self as a pure and self-illuminate spiritual being. Even during meditation, so that very idea in our consciousness, then it will start manifesting in our body and mind. Who want to weep over sins, let it do it by all means. And who think of divine and pure eternal self, the Atman within us assert its glory, always seen in the midst of clouded mind and evil thoughts. Remember wonderful words of Swamiji, rise awake from the hypnotism of weakness. ये पूरा पढ़ना है या हो गया? बस यहाँ तक एंड हो गया. Rise awake and awake. ठीक है महाराज. हाँ, ओके. तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट स्वामी विवेकानंद जो है वो तो स्ट्रेंथ के पर्सनालिफिकेशन. स्वामी विवेक स्ट्रेंथ चाहिए तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो. एवरीथिंग वाज पॉजिटिव. और इसी को यहाँ पे महाराज ने इन अपने ढंग में अपने रूप में कहा है. उसमें दो में कहा है फिजिकल स्ट्रेंथ की आवश्यकता है और उसके साथ ही साथ मेंटल स्ट्रेंथ के उन्होंने कई उपाय बता दिए हैं, कई रूप बता दिए. जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा फियरलेसनेस, डिसीजन टेकिंग, डिसीजन, इमोशंस को कंट्रोल करना, ये सारी के सारे बहुत सारी बातें उन्होंने बताई है. और ये आर्टिकल जरा सावधानी से हम लोगों को बार बार पढ़ना चाहिए उसमें और फिर उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए. तो अब हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं. तो उसके पहले मैं सबसे पहले सुबीर मजूरदार से कहूँगा कि वो उन्होंने मेरे को एक नोट भेजा था. उनके फादर ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी थी. मैंने कहा कि ये जो है वो पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर की जा सकती है. तो सुबीर. हाँ, प्रणाम महाराज जी. प्रणाम महाराज जी. हाँ, this is the note I had shared with you महाराज जी. मैंने लिखा था in the latest article on strength, as I was reading the line that self-control and purity may be difficult to practice initially, but gives great strength later in spiritual life. ये words मैंने पढ़े थे. ये पेज 223 में है, फर्स्ट पैराग्राफ में ही है. तो आई रियलाइज नहीं हाँ महाराज जी. नहीं तुम्हारे फादर ने तुमको जो कहा था बचपन की बात, उसी की बात कर रहा हूँ मैं. तो उसको जब मैंने पढ़ा तो मैंने कुछ रियलाइज किया कि मेरे फादर ने मुझे दो बहुत अच्छी चीजें बताई थी जब मैं छोटा था. तो आफ्टर माय उपनयन सेरेमनी, द फर्स्ट वन इन द 13th ईयर, वो मेरा उपनयन हुआ था. एंड आई वाज कन्फाइंड टू माय लिविंग रूम एंड आई वाज लिविंग लाइक एन एसेटिक. मेरे को कहा गया था कि कुछ दिन ऐसे ही रहना है. आई वाज वेयरिंग गेरुआ क्लोथ्स. आई हैड टू लाई डाउन ऑन ए बेड ऑफ स्ट्रॉ and live only on bhiksha, which the people who came and visited gave me, and I had to cook my own food. My mother, of course, helped me because I was only 13. So when this was over, then I always had a staff in my hand, dandi. तो मुझे कहा गया था कि जब पूरा हो जाएगा अवधि तो उस डंडी को बहा देना है. तो वहां नदी तो कोई थी नहीं, जोधपुर में था ये, और तो लेक में गए थे और वहां पे डंडी को बहा दिया था मैंने. तो उस वक्त मेरे फादर ने मुझे कहा था, इफ यू डिसाइड टू लीव एंड गो आउट इनटू द वर्ल्ड एंड लिव एज ए सन्यासी, आई विल नॉट स्टॉप यू. So it was such a great thing at that time, but I did not realize it, and I came back. So I was given the opportunity to live a life of sannyasi if I wanted to, because I was still wearing the gerua clothes, holding on to the dandi with my bhiksha jhola. तो मैं वापस आ गया. तो that is the first thing my father had given me an opportunity for. और उसी दौरान जब मैं वापस आया,
मेरा उपनयन तो हो गया था, लेकिन आई हैड टू लिव ए वेरी स्ट्रिक्ट 1 year लाइफ फ्रॉम दैट टाइम. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम, my father would keep advising me and keep reminding me कि you are now a Brahmin in the true sense and self control is very important. तो अभी मैं पढ़ रहा था कि सेल्फ कंट्रोल उसमें लिखा गया है, स्वामी अतीश्वरानंद जी वो कह रहे थे सेल्फ कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज एन आर्मर, एक कवच है of a Brahmin, and you must remember it constantly through your life. Samyam, Shangjom, as you would say in Bengali, constantly. जब मैं खाना खाने बैठता था या मैं कुछ खेल रहा था, पढ़ रहा था, कुछ भी कर रहा था, तो मुझे कॉन्स्टेंटली वो एडवाइस करते थे कि ऑलवेज बी इन कंट्रोल ऑफ वट एवर यू आर डूइंग. सेल्फ कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है. एंड आई फॉलोड हिज एडवाइस. I would get up and leave my food midway as soon as I spoke, because खाने के वक्त हमें कहा गया था कि आपने बात नहीं करना है. So you eat whatever you are given. You are not मांगना भी नहीं है, जो मिला वो खा लिया. तो बाई चांस मुंह से अगर कुछ निकला, then you have to leave the meal then and there and leave. So I lived a life like that for almost 1 year. So that self control has to be there. Now this जो टीचिंग मेरे को फादर ने उस वक्त दिया था, दिस बिकेम इनग्रेन्ड इन माय हैबिट इन माय लेटर लाइफ आल्सो. एंड दिस सेल्फ कंट्रोल व्हिच आई नाउ फाइंड इज ए ग्रेट ब्लेसिंग टू मी नाउ दैट आई हैव टेकन अप स्पिरिचुअल लाइफ, एंड हिज वर्ड्स स्टिल रिंग इन माय ईयर्स. सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद महाराज जी, एंड महाराज जी शेयर विद यू. आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. वैसे पिताजी की ये उदारता थी कि आपको उन्होंने संन्यास के लिए प्रेरित किया. लेकिन हिंदू धर्म में तो ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम है, उसके बाद वानप्रस्थ है, और उसके बाद संन्यास है. जैन धर्म में गृहस्थ आश्रम और ब्रह्मचारी आश्रम तो है ही, ऐसे आश्रम जैसे अलग नहीं है. वहां पे वानप्रस्थ जैसा नहीं है. वो या तो एक जो व्यक्ति है डिसाइड करता है कि मैं सन्यासी बनूं या गृहस्थ बनूं शुरू में ही. तो जो बचपन से ही लोग, कभी कभी कुछ लोग जो हैं वो अपने आप सन्यासी बन जाते हैं. तो ऐसा भी है. तो जो हो, ये एक अच्छी बात है. अगर माता पिता ये ध्यान रखें कि सन्यास भी एक आदर्श है जो बच्चों को दे देना चाहिए, तो बहुत सारी समस्याएं हमारी दूर हो जाएंगी. और हमारा हमारी सोसाइटी जो है, हमारा समाज, उसका आध्यात्मिक और नैतिक विकास हो. ठीक है, अब आप अपने क्वेश्चंस कीजिए. जी महाराज जी, मेरा पहला सवाल था ऑन द पेज 224 देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑन एबिलिटी टू टेक डिसीजंस, वो हेडलाइन है. तो मेरा सवाल ये है, isn't good decision making based on faith in oneself? तो अपने अंदर फेथ होगा तभी वो एक गुड डिसीजन ले पाएगा. एक मेरा पहला सवाल है. एंड हाउ कैन thus one have more faith in oneself? ऐसा है कि उसके बाद में ही महाराज ने स्वयं फेथ के ऊपर, फेथ एंड वो उसके बाद में नेक्स्ट एक सेक्शन है उनका, फेथ और कॉन्फिडेंस के ऊपर एक सेक्शन है पूरा का पूरा. तो इसको मेरा ये सजेशन है कि फेथ इन वनसेल्फ, अपने आप पे विश्वास जो है, वो तो स्वामी विवेकानंद ने सबसे अधिक महत्व दिया है उसको. और सभी वैल्यूज के लिए, केवल डिसीजन मेकिंग नहीं, सभी वैल्यूज के लिए फेथ की आवश्यकता है. तो मैं ये समझता हूँ कि इसके साथ उसको डिसीजन मेकिंग के साथ मत जोड़. फेथ इन हिमसेल्फ, अवरसेल्फ, अपने आप में आत्मविश्वास जो है वो सभी चीजों के लिए आवश्यकता है. और उसको उन्होंने बाद में एक सेक्शन है भी है जिसमें यह बात कही गई है. तो मेरा यही सजेशन है कि उसको आप अलग से जोड़ने की कोशिश मत करें. ओके जी महाराज जी, ठीक है. सेकंड, दूसरा सवाल है महाराज जी, ऑन पेज 231 स्वामी यतीश्वरानंद कहते हैं, there is a new outlook must be created, sacrificing old notions, pet ideas, prejudices. तो सवाल है कि what are these old notions, pet ideas, etc. Elsewhere on page 230 also, 5th paragraph, he says, burn away all false hope, false identification and pet ideas. So please explain, Maharaj ji.
हाँ, तो ये है कि तुम्हारे पेट आइडियाज हैं कि हमारा लड़का जो है वो बड़ा बनेगा, वो प्रोफेसर बनेगा, उसका नाम होगा, हम अपने संसार में अच्छा नाम यश कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, बिल्डिंग बनेगी, हमारी लड़की ऐसी जाए ऐसी होगी, परिवार से चिपके रहना, ये है पेट आइडियाज। अधिकांश जो 99% ऑफ गृहस्थ हैं उनके यही पेट आइडियाज होते हैं। संसार में हमारी प्रगति हो, नाम यश होवे, पैसा होवे, हमारे परिवार की समृद्धि होवे, ये है दीज आर द पेट आइडियाज। और उसको तुम विस्तार करते जाओ, जितने भी आएंगे सब लोग इसी प्रकार का किया करते। जी जी। तो इसको ये है, इसीलिए बार बार कहते हैं कि उसको स्ट्रांगली उसको करना चाहिए, दबाना चाहिए। दैट्स ऑल, नथिंग मोर। तुमने ऑलरेडी तुमने जो पैराग्राफ पढ़ी दिया है वही है, संसार के एस्पिरेशंस इत्यादि, दीज आर ऑल द पैटर्न। जी जी जी, सांसारिक एस्पिरेशंस। नाउ सपना शुड आस्क क्वेश्चंस। हां हाँ महाराज जी, शी इज रेडी। Pranam Maharaj. Now one question. We should be able to control even God thoughts. Good thoughts, says the good thoughts. Says the article. In woman, it is seen special. They get with emotions, which are a result of good thoughts. So, what should they do to? Should she read again, Maharaj ji? हाँ जस्ट छोड़ो तो। हाँ, यहाँ पे क्या है कि कुछ आवाज डिस्टर्बेंस हो रहा है। दोबारा बट आप लोगों को डिस्टर्बेंस तो नहीं लगता? मेरी आवाज क्लियर नहीं हो रही है? क्लियर है, क्लियर है ना जी। ओके, चलो फिर से पढ़ो तो। फिर से पढ़ने। We should be able to control even good thoughts, says the article. In women, it is especially that they get swayed with the emotions, which are a result of good thoughts. So, what should they do to control their emotions? After all, they are natural. ऐसा है जी, गुस्सा भी नेचुरल है, काम भी नेचुरल है, लोभ भी नेचुरल है। हमारे जीवन में हम बचपन से ही तो नेचुरली होता रहता है ना। बच्चा जो है खेलता है, रोता है, उसको गुड़िया चाहिए, उसको अच्छी मिठाई चाहिए, ये नेचुरल है। माँ उसको सिखाती है तो, स्कूल में जाता है डिसिप्लिन करना पड़ता है तो, सारी नेचुरल चीजों को कंट्रोल करना ही पड़ता है। नेचुरल कह के आप उससे छूट नहीं सकते। नेचुरली हम लोग पशु हैं, जन्मता जायते शूद्र, वो क्या है ना, तो यहाँ तक है, श्लोक तो है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजः उच्यते, विप्र वेद पाठात् भवेत् विप्रः, और उसके बाद में है, उसके बाद में वो मुक्त हो जाता है। यानी मानव जो है, एक बच्चा है, वो शूद्र ही होता है जन्म से। संस्कार से हम नेचुरल है, तो नेचुरल को डोंट मेक एन आर्ग्यूमेंट। ऑल नेचुरल थिंग्स भले इविल हो, हैव टू बी कंट्रोल। यहाँ तक कि अभी जो ऐसा आएगा कि गुड थॉट्स आल्सो हैव टू बी कंट्रोल। और सेकेंडली जैसा है कि इमोशंस, तो विमेन में इमोशंस होते हैं, लेकिन ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी विमेन भी हों जो कंट्रोल करती हैं इमोशंस को। जी, आप इंदिरा गांधी को लीजिए, उसका तो लड़का मर गया था ना, उसने अपने आप को कंट्रोल किया। माँ शारदा बहुत इमोशनल थी, रोती वगैरह थी, लेकिन फिर भी कितना काम करती थी, वो कंट्रोल अपने आप को करती थी। तो डोंट से एन आर्ग्यूमेंट कि भाई इमोशन है और इसलिए हम कैसे भी उसको कंट्रोल नहीं कर, वो स्वाभाविक है इसलिए चलने देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है? ओके महाराज, ओके 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 महाराज, थैंक यू। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन महाराज, एक और क्वेश्चन है, एक और है ना, एक महाराज मेरा एक और क्वेश्चन है जी। मेरा यहाँ पे सवाल है इमोशंस पे। एक और क्वेश्चन है तुम्हारा। हाँ जी। अच्छा, how does a spiritual person have compassion towards those who behave arrogantly or violently towards him or her?
How does one attain to such a high state? Page 228, first paragraph. तो उसमें ये लिखा हुआ है जी, कि जो स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, तो कोई व्यक्ति एरोगेंट है, वॉयलेंट है, गुस्सा करता है, उनसे झगड़ा करता है, उसको भी, उसके प्रति भी वो क्या करता है, कंपैशन रहता है, करुणा रखती है। लेकिन ये जो करुणा है ऐसा आवश्यक नहीं है। कभी कभी बच्चा यदि गुस्सा करता है, बच्चा यदि एरोगेंट हो जाता है, तो माँ क्या करती है, उसको सहन नहीं करती है, पकड़ती है, उसको डंडा लगाती है, उसका कान पकड़ती है, उसको कमरे में बंद कर देती है। उससे माँ की कंपैशन, माँ की प्रेम जो है वो कम नहीं होता। उसी प्रकार से संसार में अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का होवे, तो स्पिरिचुअल पर्सन जो है उसको पनिशमेंट दंड देगा, क्यों नहीं देगा, लेकिन उसमें ही उसकी कंपैशन, उसका जो दया है, उसकी करुणा है, वो उसी के रूप में अभिव्यक्त होगी। तो इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। अब अगर आप अपने किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, अब उसके सबके लिए आपका प्रिय समान है, और वैसे में भी अलग अलग प्रकार के स्टाफ हैं, तो स्टाफ जैसा काम करते हैं उसके अनुसार आपको काम करना पड़ता है। कभी कभी किसी को दंड भी करना पड़ता है, किसी को प्रशंसा करनी पड़ती है। तो ये जो है व्यवहारिक पक्ष है। तो कंपैशन या कृपा या दया या प्रेम, ये है उसका व्यवहारिक पक्ष अलग अलग हो सकता है, ये ध्यान। तुम्हारा प्रश्न हुआ कि नहीं? जी महाराज, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मेरा यही था क्या? जी नहीं, यही इसी प्रकार का था ना, यही आइडिया था ना, इसी प्रकार का ही था। यस महाराज, तुम्हारा यही कहना था कि जो लोग एरोगेंट हैं, एंग्री हो जाते हैं, उनके प्रति कंपैशन कैसे रखी जाए, यही है ना? एग्जैक्टली महाराज। तो दिखाने का बात नहीं है, उसको डांटना, उसको दंड करना, उसको समझाना, ये भी कंपैशन का मार्ग हो जाता है। जी, ठीक है? प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज, पीयूष दिस साइड। प्रणाम महाराज, पीयूष बोल रहा हूँ। हाँ, इसी में महाराज वेरी गुड। मैं आगे बात अच्छा, इसी में महाराज मैं आगे करना चाहूंगा कि जैसे कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हमारे को कई बार ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो होता क्या है कि हम तो कर देते हैं, पर इसका असर हमारे पे खुद पे भी बहुत भयंकर पड़ता है कि हम चाहते होते हैं कि किसी को गलती के लिए टोकें, पर जैसे इसमें लिखा कि हेट्रेड नहीं होनी चाहिए, पर अंदर से वो निकल के अपने आप ही, क्योंकि इतने सालों से जैसे बनी हुई है हैबिट्स, तो वो अपने आप थोड़ी सी हेट्रेड तो उसकी हो जाती है कि जो आदमी गलत करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको कैसे चेक किया जाए हेट्रेड को? नहीं, ऐसा है कि भाई थोड़ा इसको जप, मेडिटेशन, स्वाध्याय से अपने अंदर को बदलना पड़ेगा। नहीं यानी महाराज जैसे, हाँ याद रखो, ऐसा है, स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं सब में भगवान देख लो, पापी में भी भगवान है और वो भी भगवान है, लेकिन ये भी इस पर कहते हैं कि जो पापी भगवान है उसमें भगवान देखना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में उसको दंड तो देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में यही बात है कि अनफॉर्चुनेटली हम उसमें भगवान नहीं देख पाते, हम उसको दंड देने में गुस्सा हो जाते हैं, हम अपने आप में परिवर्तित हो जाए, ये हमारी गलती हो जाए। तो इसके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आवश्यक, मन को शांत रखना और स्वाध्याय करना, प्रतिदिन स्वामी विवेकानंद को पढ़ना कि भाई सब में भगवान है, इस बात को मन में बना के रखने का प्रयत्न करना बहुत आवश्यक। अब जैसे वो पवारी बाबा की बात है कि पवाहारी बाबा की बात है कि वो चोर के पीछे भागे, उसको भगवान कह के उसको चीज दी, ये हम नहीं कर सकते, ये पवारी बाबा जैसे संत ही कर सकते। हम तो चोर आएगा तो उसको पकड़ेंगे, दंड देंगे, लेकिन यह सोचकर दंड देंगे कि वो भगवान। ये एक तुम्हारा जो प्रश्न है वो बिल्कुल अच्छा है, करेक्ट प्रश्न है कि ये प्रैक्टिकल करना इतना आसान नहीं है। पहली बात, अगर करें भी, दंड दें भी, तो हमारा मन विचलित हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। मन में राग द्वेष न आवे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मेरे को ध्यान है महाराज, हाँ जी, मेरे को ध्यान है आपके साथ एक बार ना
कैंप पे मैं गया था, आज आपके साथ ना मेडिकल कैंप पे वैन पे गए थे, तो वहां पे एक पेशेंट लेट हो गया था। अच्छा, तो आपने कहा था कि हाँ भी लेट हो गए हो, अब आपको नहीं हम देखेंगे। तो मेरे को उस टाइम लगा था कि महाराज ने उस पेशेंट को क्यों छोड़ा, क्यों नहीं उसको ट्रीट किया। पर अभी कई बार मैं बाद में एनालाइज करता हूँ, क्योंकि टाइम और डिसिप्लिन तो सबसे पहले है जो कि सबको फॉलो करना चाहिए। तो उस टाइम मेरे को थोड़ा सा लगा था कि महाराज को इस पेशेंट को देखना चाहिए था, पर आपने कहा कि नहीं। तो वही बात आज दोबारा फिर सार्थक होती है कि अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेना और अपना काम जो है ना वो बड़ी ईमानदारी के साथ करते रहना चाहिए। धन्यवाद महाराज, प्रणाम। नहीं वो तो ठीक है। ऐसा है कि ये समाज के रूल्स रेगुलेशंस, व्यवहार के रूल्स रेगुलेशंस हमेशा रहेंगे। हाँ जी। अब व्यवहार के अंदर परमार्थ को नहीं लाना है, याद रखो। व्यवहार में तो परमार्थ में तो सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन व्यवहार में अंतर करना पड़ेगा, देश काल पात्र के अनुसार काम करना पड़ेगा। ये व्यवहार में बहुत इंपॉर्टेंट बात। प्रणाम महाराज। धन्यवाद, प्रणाम। महाराज प्रणाम महाराज। हाँ ठीक है। चंदन, कुंडू। Yes, Maharaj. कुंडू, Yes, Maharaj. Pranam, Maharaj. My first question, Maharaj, is that in page 222, if strict continence is essential for making the brain cool and strong, what will happen to us who have not practiced it? How does the householder progress in spiritual path? now don't worry about that. Do whatever how much you can do. Now continence etc. ऐसा है कि ऐसा व्यक्ति जो है, जो स्ट्रिक्ट कॉन्टिनेंस है, वो 2 घंटे 2.5 घंटे बिना हिले डुले मन को शांत रखे एकाग्र कर सकता है मन। ये हम नहीं कर सकते, तो आधे घंटे तो बैठ सकते हैं, दैट्स इट। 45 मिनट्स बैठ सकते हैं, उसके बाद ब्रेक कर लिया, उसके बाद बैठ जाए। There are a lot of alternatives are there. Don't worry about higher spiritual experiences. Yes. Remember, यहाँ तक कि जो लोग पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहते हैं, उनमें भी बहुत कम बिरले ही हों जो इतने हाई स्टेज पे पहुंचते हैं। दूसरे फैक्टर्स भी हैं उसके अलावा, उनके मन चंचल रहता है, या उसकी दूसरी वासनाओं के अट्रैक्शंस या रिपल्शंस होते हैं, नाम यश की बात हो जाती है। कई ऐसी बातें भी होती हैं कि जो साधु हैं, सारा जीवन ब्रह्मचारी का प्रावधान किया है, वे भी अधिक ज्यादा नहीं जा सकते। तो डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट टेक इट, मेक इट ए वेरी सीरियस वन। अब वी हैव टू बी केयरफुल, आगे ऐसा कुछ नहीं करना। Yes, Maharaj. सेकंड, Then next question, Maharaj, page 224. It is advised to cultivate good habits early in life. Now, the parents always teach the children good habits. But as one grows old, one accumulates bad habits. Why does it happen? बिकॉज ऑफ अवर वासनाएं, हमारी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, स्ट्रॉन्ग सेंसेस, सेंस एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, नाम यश के लिए जाना चाहते हैं। ये हमारी इच्छाएं, वासनाएं जो अंदर भरी हुई हैं वो निकलती हैं, इसके कारण ये होता ही है। So that means there is good, there is bad. We know what is good, we know what is bad. That is almost true of everyone. But is it that the bad attracts more than the good? यस, बहुत सारी कहानियां हैं, जा रहे हैं लोग तो वो अट्रैक्शन, जो बैड इज ऑलवेज मोर अट्रैक्टिव, और कितने लोग फंस जाते हैं संसार में। Yes. जानते हुए भी। तो ये ऐसा ना, आजकल तो है कि आइडियल जो भी है वो स्ट्रांग नहीं है, जैसा तुमने कहा है। टीवी, न्यूज़पेपर, गॉसिप, सोशल प्रेशर, तो इसलिए क्या होता है कि वो हैबिट नहीं बन, ये इसमें फंस जाते हैं। ये याद रखो कि ये खराब चीजें हैबिट नहीं बन जाए, इतना याद। बीच में एक आध बार हो गया, लेकिन मैं जानता हूँ कोई अच्छे लोग हैं या साधु भी हैं, उनको हैबिट हो गई है टीवी के सामने बैठने की। न्यूज़पेपर, वो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे सब साधु, अब उसे क्या फायदा होगा, क्या करो। तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आते सूरज से, इसीलिए कहते हैं सूरज से धारा, ये रेजर सेट इसीलिए है, बाकी
बहुत कठिन है, बहुत कठिन। Yes, Maharaj. That means Maharaj ji, हाँ, Maharaj ji, that means it's very easy to succumb to bad habits, but very difficult to develop good sanskaras. डेफिनेट हाँ। और तब भी महाराज स्वाध्याय या having the ideal always in front is very important. ना वो तो क्या है कि एक पहला ये है कि एक रूटीन बना लो, रूटीन बनाओ, उसके अंदर स्वाध्याय होना चाहिए, ध्यान जप होना चाहिए, और इन चीजों को धीरे धीरे इसका रूटीन जो है उसमें टाइम बढ़ाते जाओ, ध्यान का टाइम बढ़ाते जाओ, स्वाध्याय का टाइम बढ़ाते जाओ, ट्रांसलेशन का टाइम बढ़ाते जाओ, राइटिंग का टाइम बढ़ाते जाओ। ये जो जितनी चीजें हैं जो स्पिरिचुअल है उसको रूटीनली बढ़ाने की कोशिश करो। Yes, महाराज। और संसार जहां तक हो सके संसार से दूर रहो, लोगों से मिलना जुलना, जो विषयी लोग हैं, संसारी हैं, उनसे दूर रहने का प्रयत्न करो। तो प्रिंसिपल्स वेरी क्लियर हैं। Only thing is we make excuses, धीरे हो जाते। और तीसरा क्या था तुम्हारा? तीसरा और कुछ है ना? तीसरा महाराज पेज 227 में है, we should make others feel our strength through our firmness and dignity. Now, over a period of time, when we know the surroundings, we can impress upon others with our firmness and dignity. But it takes a long time to create that impression in social situation. So what should one do when he is new and no one knows his nature? अच्छा, इसको मैंने अपने तुम्हारे रिप्लाई में लिखा है, you are in the field. Yes, Maharaj. And you can answer it better. और ये ओरिजिनल का एक्सीलेंट पैराग्राफ है, उसको देखो तो जरा। Yes, Maharaj. Now, here it says, if you want to keep quiet when others do us an injustice or when they do something wrong, we must be strong. If we should retaliate, we should be strong. Strength is indeed needed in both cases. And we must be so strong that others feel this strength even if we do not hit back. There is a way of keeping quiet which makes the other person feel your strength and feel his wrong. He will not dare to take advantage of you again. We should make others feel our strength not through thoughtless or violent action, but through our firmness and dignity. The world we live in is so bad and so impure that it will always try to take advantage of us if we are weak. So the first quality that an aspirant should develop is strength, real inner strength, a strength that will not own defeat. Now, Maharaj, in practical field, what happens? Like, say, we go to a new station, in a transferable job, we go to a new station. It takes time for people to understand what I want or what sort of a person I am. Maybe later on they behave depending on my nature. But initially, how do we stop them? Through this firmness and dignity. This firmness. वही तो बात है। अगर वो तुमको कहें, फ्रेंड्स को कहें कि चलो भाई जरा चलो, we will have a sip, we have a sip of half a cup of beer, you take, let us take, come with us. You say firmly, no, I cannot come. I will not come. Are you going to bow down? No. After that they will know, अरे यार ये इसको बोलने से फायदा नहीं, he is not going to join us. समझे ना? So there are so many things world we go on doing, you go on refusing, you don't mix with them. Your own है, कहाँ जा रहे हो? कि हम जा रहे हैं आश्रम जा रहे हैं. I am going to ashram. So I was a student. So they will used to say, अरे स्वामी जी मेरे को, they used to tease me in the medical college, स्वामी जी, because मैं कहाँ मैं जाऊँगा आश्रम जाऊँ. But then they knew that he cannot be taken to the other direction. So from the beginning, what you have to decide, what you have to do and what not to do. Yes.
and that has to, opposition has to become, but later on within 3-4 years they will know that is a different subject. To accept. चलो ठीक है, दिलीप भाई. महाराज जी, the ability to say no, ये no कहने का जो ability है, that helps a lot in life. हाँ ठीक है, that's right. दिलीप भाई. दिलीप भाई. सॉरी, हाँ, मैं ये कह रहा था कि ना कहने में बड़ी ताकत लगती है. इट्स नॉट सो इजी, इट्स नॉट सो इजी टू से नो. इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. ये वास्तव में जो स्ट्रेंथ टॉपिक है, वो स्ट्रेंथ हमको लगती है कि व्हेन वी से नहीं करेंगे, हम नहीं आएंगे. पूरा ईगो से बोलना पड़ता है. ईगो कम्स इन द पिक्चर. यस महाराज, ये ईगो आता है. और आई थिंक ईगो नहीं रहने से आप नो बोल ही नहीं सकते. ये छोटा माइल्ड नो में काम नहीं होता है. माइल्ड नो में काम नहीं होता है. नहीं, अरे मैं क्या इसके लायक हूँ कि एक कप पी सकूं? अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ. इसमें कहा ईगो उल्टा हो गया. मैं अपने आप को विनम्र बना रहा हूँ. जी, यस सर. चलो प्रश्न करो भाई. जी महाराज, प्रश्न के पहले मेरा ये था इमोशंस पे जो आपने डिस्कस किया था. महाराज, जब ये होता है कि राजा मरता है तो उस समय कहते हैं किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग. तो उस समय क्या नए राजा के इमोशंस खत्म हो जाते हैं क्या? यानी दे आर brought up in such an environment, एक रूलर किंग, ये कहा जाता है अंग्रेजी में कि ए किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग. मर गया, दूसरे राजा के ताजपोशी हो जाती है उसी वक्त. और किंग की भी होती और हमारे वहां भी होती प्राइम मिनिस्टर की, कि एक प्राइम मिनिस्टर गया तो इमीडिएटली वो सीट दूसरे को दे दी जाती है. और ये माँ बेटे को जब दी गई तो क्या इमोशंस ऑटोमेटिक गायब हो जाते हैं? क्या हो जाती है? इमोशंस गायब हो जाते हैं. कंट्रोल करना पड़ता है. भैया मेरे को समझ में नहीं आया तुम्हारा. अरे प्रधानमंत्री मरा तो अपने को क्या लेना देना उससे? नहीं महाराज, मैं प्रधानमंत्री का एग्जांपल एक दिया, पर राजा का एग्जांपल रहता है यहाँ पे. तो कहते हैं लॉन्ग लिव द किंग. उससे क्या लेना देना? नहीं, किंग इज डेड और उसके बेटा जब ताजपोशी उसकी होती है तो उस समय उसके क्या इमोशंस खत्म हो जाते हैं क्या? कि मेरा पिता मर मेरे को नहीं मालूम. मैं राजा नहीं रहा ना राजा. मैं अपने राजकुमार भी नहीं. मेरे को नहीं मालूम उनका क्या इमोशन है. जी महाराज, जी ये क्यों प्रश्न पूछ रहे हो? नहीं, यानी मेरे अच्छा, मेरा क्वेश्चन. अरे छोड़ो, वो प्रश्न हमारे लिए कोई महत्व का नहीं है. नहीं, सैकड़ों चीजें आएंगी, सोचने में क्या फायदा होगा. मेरा पहला सवाल है, पेज नंबर 222 की आखिरी लाइन है. Without observing continence, that is a brahmacharya, the brain getting heated up quickly. What is the reason behind it? एकदम क्यों गर्म हो जाता है? वो ऐसा है, नर्वस सिस्टम एक्साइट हो जाती है. सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है हमारे शरीर में. और अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करें तो सेक्स एक्ट के समय तो सारी शरीर हमारा जो है बहुत एक्साइट हो जाता है. और बहुत एक्साइट हो जाता है, हमारे नर्व सिस्टम बहुत टाइट हो जाती है, बहुत जबरदस्त हो जाती है, पसीना आ जाता है, ये सब हो जाता है. और इस प्रकार बार बार किया जाए तो हमारा शरीर जो है वो बहुत गर्म हो जाता है. अल्टीमेटली उसका स्वभाव परिवर्तित हो जाता है. वो उसके लिए फिर ध्यान के लिए उचित नहीं रहता. बिल्कुल, अगर किसी कोई ब्रह्मचारी है तो उसका पल्स भी स्लो रहेगा, उसका मन शांत रहेगा, ब्लड प्रेशर कम रहेगा. ये होता है. इन सब करने से, ये एक्साइटमेंट करने से ये सब बढ़ जाता है. तो एक ब्रह्मचारी के जीवन, यस सर महाराज, एक ब्रह्मचारी के जीवन में एक्साइटमेंट भी नहीं रहता है और ब्लड प्रेशर और ये सब नॉर्मल रहते हैं क्या? नहीं, अगर दूसरे कारण हो तो बात दूसरी है. जी, अगर दूसरे कारण होवे, उसको पैसा कमाना हो, टेंशन हो, दूसरे कारण से हो तो बात दूसरी होती है. अच्छा. लेकिन एज कंपेयर टू दूसरा व्यक्ति जो है वो अब्रह्मचारी है, उस दृष्टि से वो अधिक शांत होते है उसकी नर्वस सिस्टम.
राइट जी उसकी नर्वस सिस्टम जो है वो अधिक अच्छी रहती राइट महाराज। नहीं, अच्छा मेरा दूसरा सवाल है, weak minded people cannot accept the high ideal and pay high price for it. Here weak minded means a person who lives in the spirituality or otherwise. नहीं नहीं, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, सेल्फ ए, कंट्रोल, सेंस कंट्रोल नहीं है, अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं है, जीवा में जो मर्जी है उसको खाता पीता है, भोग करता है, उसके मन में शक्ति नहीं है कि वो कुछ कर सके, अपना कोई डिसीजन लेना है उसको पकड़ के रह ना सके, ये कुछ नहीं करते। ये सारी की सारी बातें उसको तुम आर्टिकल पढ़ो, उसमें पूरा डिटेल करके वर्णन किया। यानी ये सब क्या है कि काम कुछ करते ही जाते हैं, अपने मन पर कंट्रोल नहीं है और इंद्रियों पर नहीं संयम नहीं है। किसी ने आदमी ने बोला तो तुमको गुस्सा आ गया, मन शांत नहीं रहता, ये सब वीक माइंडेड के लक्षण है। जी जी। नेक्स्ट है, स्पिरिचुअल लाइफ इज सेल्डम स्मूथ, रेयरली डज इट गो इन अ स्ट्रेट लाइन। हाउ इट हैपेंस? बिकॉज ऑफ पास्ट संस्कार ऑफ अर्लियर लाइफ्स or of a good reading of a spiritual books and top of all the good guru and the support of family. क्या क्या प्रश्न है तुम्हारा? हाँ, कि जो है स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो is seldom smooth, rarely does it go in a straight line. तो ये उन्हीं के जाते होंगे। हाँ, ये किन के जाते हैं स्ट्रेट लाइन में? इसमें लिखा हुआ नहीं, है नहीं। स्पिरिचुअल लाइफ इज सेल्डम स्मूथ, rarely does it go in a straight line. हाँ, तो उसका कारण क्या है? आध्यात्मिक जीवन जो है, आध्यात्मिक जीवन आसान नहीं है जी, वो उतार चढ़ाव वाला है, क्योंकि हमारा मन उतार चढ़ाव वाला है। हमारी इच्छाएं वासनाएं उठती जाएंगी, कभी शांत होगी, ये सारी बातें होंगी। हमको संघर्ष करना पड़ेगा। आध्यात्मिक जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, पैसा कमाने में भी संघर्ष करना पड़ता है, उसमें भी टेंशन होता है, आध्यात्मिक जीवन में भी होता है। ध्यान करो, ध्यान करने पर मन के जितने संस्कार है ना वो ऊपर उठ जाएंगे, मन और चंचल हो जाता है, और व्यक्ति जो है और भी चंचल हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, उसको टेंशन ज्यादा हो जाता है। ध्यान करने में शुरू में लगे रहो 5-10 साल के बाद में वो ठीक होता है। धोने के लिए समझे? हो गया पॉइंट कि नहीं हुआ? नहीं महाराज जी, अब इसमें ये लिखा है कि रेयरली डज इट गो इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कभी किसी के साथ ये स्ट्रेट लाइन पे जा सकता है। स्पिरिचुअल लाइफ इज ए सेल्डम स्मूथ बट देयर कैन बी सम। तो मेरा ये पूछना था कि उनका वो कैसे जा सकता था? क्या पूर्व संस्कार के सम पीपल जिनके जीवन में आसानी से भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश लोगों को उतार चढ़ाव में से आध्यात्मिक जीवन में जाना पड़ता है। अच्छा जी। अब आपका क्या प्रश्न है? नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि जो वो फॉर्चुनेट लोग हैं, जो भाग्यशाली है कि जिनका स्ट्रेट लाइन में जाता है बड़ा स्मूथ, तो उसके क्या कारण रहते हैं? क्या पूर्व संस्कार? कारण ये है कि उनके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं, इसलिए होता है। और इस जन्म में गुरु अच्छा मिल जाए, गुरु मिले ना मिले, गुरु भी अच्छा मिले, कोई बात नहीं, ये भी अच्छा ही है। पूर्व संस्कार अच्छा है। गुरु तो सभी के हैं, उनके सब बहुत सारे, उनके सब गुरु तो हैं, उस गुरु के बहुत सारे शिष्य हैं, सब अधिकांश शिष्यों के तो उतार चढ़ाव से जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन एक आध है जिसका सीधा चल रहा है। हाँ। तो गुरु पर बहुत बोलो, गुरु बेचारा क्या करेगा? गुरु तुमको मार्ग दिखाएगा, चलना तो तुमको पड़ेगा। गुरु पर इतना निर्भर मत करो, खुद करो जी। और जब देखोगे कितना पड़ता है। हम कुछ करना नहीं चाहते और गुरु पे बताते हैं गुरु कर देंगे, गुरु कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे गुरु। उसकी चिंता मत करो। इतना अधिक जो लोग है ना, काम नहीं करना चाहते, ध्यान नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, और गुरु अच्छा गुरु होना चाहिए, उत्तम गुरु होना चाहिए, श्रेष्ठ गुरु होना चाहिए, उसकी कृपा से होना चाहिए। अरे फालतू, गुरु तो अपनी कृपा करते हैं। कृपा तो है, कृपा है, यतीश्वरन ने हमारे गुरु ने कहा था, मैंने तो कृपा की है, उसका उपयोग करो। उपयोग नहीं करना चाहते, बस गुरु चाहते। महाराज एक प्रश्न करो इधर। ये स्वामी जी के कहावत है कि स्वामी जी ने कहा है कि इफ योर स्पिरिचुअल लाइफ इज गोइंग स्मूथली, देयर समथिंग इज रॉन्ग विद दैट।
हाँ अभी आएगा तो तुम्हारे क्वेश्चन है ना, ये किसी का क्वेश्चन है, अभी हो चुका है ऑलरेडी। यदि ठीक यानी आध्यात्मिक जीवन में संघर्ष आएंगे ही आएंगे, कठिनाइयां आएंगे ही। जी अरे जन्म जन्मांतर के संस्कार जो हैं वो उठेंगे। उठेंगे। अचानक तुमको लड्डू नहीं मिलने वाला। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, फियरलेसनेस द ये मीनिंग। तो तुम्हारा ही तो है प्रश्न। जी स्पिरिचुअल लाइफ इज सेल्डम स्मूथ। यस, तुम्हारा ही तो प्रश्न है दिलीप। हाँ जी, संस्कार है, जी मेरा इस प्रश्न है, भोजन है, पूर्व वासनाएं हैं, हाँ सांसारिक परिस्थितियों के कारण संसार के लोगों से मिलना जुलना होता है। तो ये स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो बड़ी कठिनाई की होती है, याद रखो। जी और उसके बदले कुछ मिलने वाला नहीं है। संसार में कुछ करो तो कुछ तो मिल ही जाता है। 1 लाख कमाना था, कम से कम 5,000 तो मिले। यहाँ पता नहीं कुछ मिलता है कि नहीं मिलता, उसमें लगा रहना पड़ता है। चलो नेक्स्ट, फियरलेसनेस द मीनिंग एंड थ्रू फियरलेसनेस हाउ ब्रह्मन इज रियलाइज्ड। इज फियरलेसनेस एंड द सेल्फ रियलाइजेशन इज वन और ड्यूअल? सेल्फ रियलाइज सच्ची फियरलेसनेस होती है जब हम अपने स्वरूप को जानते हैं। हम जानते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, अभयम वही ब्रह्म सी। जब उसमें फियरलेसनेस में कोटेशन दिए हुए हैं बहुत सारे। जो ब्रह्म है वो अभय है। द्वितीयाद्वय भयम भवति, जब दो होते हैं तब भय होता है। जो अकेला होता है तो अभय हो जाता है। मैं जब सर्वत्र हो एक ही हूँ और किसी और कुछ नहीं हूँ तो उसको भय नहीं होता। तो आध्यात्मिक दृष्टि से फियरलेसनेस का अर्थ है अपने स्वरूप को जानना। उसके बिना हम ठीक फियरलेस नहीं हो सकते। अपने स्वरूप का चिंतन करना, क्योंकि अगर 2 व्यक्ति हैं तो उसमें ये होगा कि 2 अगर मिलने पे तो सुख होगा, विरह पे दुख होगा। और अगर हमारा शत्रु है तो मिलने पर दुख होगा और उससे विरह से दुख होगा, सुख होगा। तो यह सुख दुख बने रहेंगे जब तक 2 रहेंगे। इसलिए कहते हैं एक होना चाहिए। जी ठीक है, चलो। हमारा नेक्स्ट मेरा सवाल है, पेज 228 पर है, पूरा पैराग्राफ है। दैट स्टार्ट, आधा तो आपने समझा दिया था पर आधा बाकी है इसके अंदर, आधा पहले आ गया है। इन द किंगडम ऑफ गॉड द लॉ इज लव एंड सैक्रिफाइस, बट दिस हैज टू बी रियलाइज्ड with vidya shakti and not by avidya shakti. How to act upon all these virtues, how to get the knowledge to what extent love, sacrifice and compassion in the sansar be done, and where and when to stop. Further says, do not be soft and sentimental where your spiritual progress is involved. Does it not mean rudeness? What is the difference between rudeness and the ahimsa? तुम्हारा प्रश्न ये है, देखो कि हम कब प्रोग्रेस करें, कहाँ पे रुकें, यही तो है ना प्रश्न? जी जी हाँ है ना जी। तुम साधना करते चले जाओ, तुमको अपने आप ज्ञान मिलेगा। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे तब पता चलेगा कि अब मेरे को किस दिशा में जाना है, यहाँ रुकना है कि नहीं रुकना है, कौन सी साधना करनी है। जब तुम आगे बढ़ोगे तब अपने आप तुमको ये बात चली जाएगी, पसंद समझ में आ जाएगी। महाराज इसके अंदर है विद्या शक्ति और अविद्या शक्ति। विद्या अविद्या, हाँ ये सेकंड पैराग्राफ है। इन दिस वर्ल्ड बोथ द पावर्स आर वर्किंग, विद्या शक्ति एंड अविद्या शक्ति, द पावर ऑफ नॉलेज एंड द पावर ऑफ इग्नोरेंस। यस हाँ। तो तुम्हारा प्रश्न क्या है? नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि लव एंड सैक्रिफाइस, द किंगडम ऑफ लव, किंगडम ऑफ गॉड, द लॉ इज लव एंड सैक्रिफाइस, बट दिस हैज टू बी यूटिलाइज्ड। नहीं, तो वो विद्या और हाँ, तो ये विद्या और अविद्या से क्या संबंध है इसका? नहीं, तो ये किस रेफरेंस में यहाँ दिया गया है महाराज, ये पैराग्राफ में? इन दिस वर्ल्ड बोथ द पावर्स आर में क्या विद्या अविद्या है, उसके बाद में लव और सैक्रिफाइस आया है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास जो है ना वो यहाँ पे है, उसमें नहीं है हार्ड कॉपी।
ये महाराज पेज नंबर 221 की पहली लाइन है, इन द किंगडम ऑफ गॉड द लॉ इज लव एंड सैक्रिफाइस, एंड इन द सेकंड पैराग्राफ इट सेज इन दिस वर्ल्ड both the powers are working, vidya shakti and avidya shakti, the power of knowledge and the power of ignorance. The spiritual aspirant must open himself to the former but not to the latter. This may mean a certain amount of hissing, but he should not bite, nor should he entertain feelings of hatred or revenge. He must be very alert about the forces of playing all around him. हाँ, ये पूरा पैराग्राफ है इसका। तो ऐसा है कि चारों ओर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, अच्छे भी हो रहे हैं, बुरी भी हो रहे हैं। तो हमको सावधान रहना चाहिए कि जहाँ पर अविद्या हो, जहाँ पर काम क्रोध लोभ का विस्तार हो, उससे दूर रहें। ये उनका विल बी वेरी केयरफुल। यस, तो अपने ऊपर चढ़ने मत देना, यही कहा बस। और महाराज ये इसके आगे एक लाइन और है कि फर्दर सेज दैट डू नॉट बी सॉफ्ट एंड सेंटिमेंटल वेयर योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इज इन्वॉल्व्ड। Where your spiritual progress is involved, you should not be soft and sentimental. So, what is the meaning? You must not be soft. पूरा फिर से पढ़ो तो पास में लेके पढ़ो। आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। महाराज जी वो लाइन ऐसा है, in the name of ahimsa he should not be too soft and yielding. Do not be soft and sentimental where your spiritual progress is involved. माँ रोने लग गई, माँ रोने लग गई, शादी कर ले बेटा। माँ रोने लग गई, शादी कर ले बेटा। तो हम बहुत नरम हो गए, माँ के कहने से शादी कर ली, आध्यात्मिक जीवन हमारा बर्बाद हो गया। ये सेंटिमेंट लव, इसके कारण हमको दुर्बल नहीं होना है। ये बात है। राइट जी महाराज। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल है। As the aspirant progresses, he started getting pleasures in sadhana. Is it a mental pleasure? बौद्धिक सुख है? And why it is dangerous? They say it's a dangerous. कहाँ लिखा है? इसमें लिखा है डेंजरस। यस, आर्टिकल में लिखा है क्या? महाराज ये लिखा है पर आई कुड नॉट, उसको मैं अंडरलाइन नहीं कर पाया हूँ, तो बहुत ट्राई किया। एनीवे दैट्स व्हाई स्टार्टेड गेटिंग प्लेजर। जी, ऐसा है जी कि साधना में शुरू में अगर आनंद आवे तो अच्छा है। हाँ, पर ये आनंद आने दो, इससे हम साधना में लगे रहें। जी, लेकिन आगे चल के हायर लेवल के ऊपर उसके ऊपर जाना पड़ेगा। शुरू में अगर हम ध्यान जब करते हैं, आपको अच्छा लगता है तो करे जाओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आगे एक लेवल आएगा तब उसके भी ऊपर चढ़ के हमको ध्यान की गहराई में जाने के लिए ये जो आनंद प्लेजर है वो बाधा बन सकता है। ये ध्यान। ओके, बराबर। चलो आगे चलो। बस महाराज जी प्रणाम। ओके जी महाराज जी प्रणाम। महाराज जी प्रणाम। मुझे एक जगह जाना है, मुझे कभी नंबर आएगा, अभी ठहर जाइए, ठहरिए, आपका नंबर आने वाला है। रीता बिस्वाल, रीता बिस्वाल, क्या हुआ? No, I could not unmute. Can you hear me now, Swamiji? Yes, start. Ask your question. My question is mental strength in trying situations often becomes weak. It crowds out all decision-making power. How to develop one's mental strength properly so it doesn't become weak?
Read Swami Vivekananda every day. Yes, Swami Swamiji. Vivekananda के letters of Swami Vivekananda and Swami Vivekananda in Colombo to Almora. When I was a student, continuously I used to read them. And I had tremendous strength. I was able to face so many difficulties. Yes, yes. So I have no other answer except this. Lectures of Swami Vivekananda and lectures from Colombo to Almora. Second is, ऐसा है कि यतीश्वरानंद जी has said, we start and then we stop. He has said, follow a definite thing, action, routine, tenacity to hold on. Yes. Develop by holding on. Yes, Swamiji. ऐसा है कि something about spiritual practice has to be done and routine has to be strictly followed. Then only your willpower will increase. Otherwise, you do for something and after some days you go and leave it. That should not be. Yes, Swamiji. Yes, Swamiji. Now I got it. Actually, this was missing. This was missing. That is why I was facing the problem. Okay, Gurpinder. Yes, Maharaj ji. You have some मेरा question, ना? हाँ जी मेरा था कि ये था 225 पेज पे, if you are not able to manipulate a noble sentiment that suddenly rises in your mind, you will succumb to a bad impulse or sentiment the very moment it rises in you. तो अच्छे थॉट्स, नोबल सेंटिमेंट्स तो आते ही रहते हैं कभी किसी ना किसी चीज के लिए, बच्चे से रिलेटेड, घर से रिलेटेड या वर्क से रिलेटेड। देखो ऐसा है कि वो बच्चा कहता है कि मेरे को ये तुम्हारे मन में आया कि बच्चों को ये खिलौना देना चाहिए, उसको देना चाहिए, एक लड्डू देना चाहिए। अब वो तुम हमेशा यही करते रहोगे और कुछ करते रहोगे नहीं। देखो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, मेडिकल स्पिरिचुअल लाइफ में बुरे विचारों से तो दूर रहना ही है, लेकिन अच्छे विचारों को भी कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी ध्यान करने बैठे तो अच्छे विचार भी आते हैं, कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, इधर उधर की बातें आ रही है, लेकिन अच्छी बात आ रही है। श्री रामकृष्ण की चर्चा हो रही है तो अच्छा लग रहा है, लेकिन श्री रामकृष्ण का हमें ध्यान करना है। उसके आगे जाके श्री रामकृष्ण को चारों ओर घुमाना नहीं है दक्षिणेश्वर में, उनको खटिया पे बिठाना है और उसको हमें ध्यान करना है। यानी धीरे धीरे जो अच्छे विचार हैं उनको भी नियंत्रित करके एक करना है। बहुत से विचार होना, बिखरे हुए अच्छे विचार होना और एक अच्छा विचार होना, ये बहुत महत्वपूर्ण। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वी मस्ट बी एबल टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट, उसको कंट्रोल करके, नियंत्रित करके सही दिशा में लगाने की हम में क्षमता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको पता नहीं कैसे समझावें, लेकिन अब जैसे हम लोग हैं तो हम आश्रम में रहते हैं तो हमारे को न तो टीवी देखने की इच्छा होती है, न न्यूज़पेपर पढ़ने की, बुरे विचारों का कोई प्रश्न नहीं होता। तो क्या करें, हमारा काम हो गया क्या? नहीं, हमारे को ध्यान करना पड़ेगा। हमारा मन अभी भी चंचल है, मन इधर उधर जाता रहता है, ध्यान पूरी तरह हो नहीं पाता। अभी ध्यान श्री रामकृष्ण की बहुत सी बातें आती हैं। अब हमको केवल ऐसा ध्यान करना होगा कि जिसमें श्री रामकृष्ण एक स्थान पर हैं और उसके आगे वे सच्चिदानंद में विलीन हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार से करने पर हम देखेंगे कि साधना के लिए सबसे पहले बुरे विचारों से दूर रहना है और अच्छे विचारों को भी कंट्रोल करना। ठीक है? और नहीं तो क्या होगा कि अगर अच्छे विचारों पे कंट्रोल नहीं है तो ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तो तब विचार चारों तरफ हैं तो वो तुम्हारे ऊपर अपना वो उनका जमा देंगे, तुम्हारे तुमको हावी हो जाएंगे। ओके? और हाँ जी महाराज जी, और एक थैंक्स आपका जी।
इसमें जो पढ़ा ना मतलब इस आर्टिकल को पढ़ते हुए मुझे लगा नहीं कि मैं समरी कैसे कर पाई, बट एक चीज मुझे पता लगी कि मैं लैग कहाँ पे कर रही हूँ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में और प्रोग्रेस में। ये चीज मुझे बहुत जो यहाँ आया ना पॉइंट के फर्म एंड सॉफ्ट डिसीजन, कि हर कोई आपकी बाउंड्री में पेनिट्रेट ना कर जाए, वो चीज बहुत प्रॉब्लम थी वर्क में भी और पर्सनल लाइफ में भी। तो इसके लिए थैंक यू आपका। अच्छा, सतीश प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। हाँ जी महाराज, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेंटल स्ट्रेन्स एंड स्ट्रगल्स दैट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स? पहला है हमारा सेंस कंट्रोल नहीं है, सेंसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, हमारे खाने पीने की इच्छा है, घूमने फिरने की बहिर्मुखी वृत्ति है, उसको कंट्रोल करना है, तो ये स्ट्रगल हुआ। सेंस कंट्रोल के वर्सेस सेंस एंजॉयमेंट, ये एक स्ट्रगल हुई। उसके बाद में रेस्टलेस माइंड है, मन चंचल है, उसको कंट्रोल कर रहे हो तो बड़ा मुश्किल है ये। एक मानो एक बच्चे को आप कंट्रोल करने की कोशिश करो, कितना कठिन होगा। हमारा मन जो है उससे भी अधिक कठिन है कंट्रोल करना, तो ये हो गई। अच्छा, शरीर को अब बिठाने की कोशिश करो, आधे घंटे बैठने में थक जाता है, सीधे बैठना ही नहीं हो पाता है। उसके बाद में है बहुत सारे लोगों से हमने मिलने की अभ्यास हो गया है, स्वभाव हो गया है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो सब जगह तो सर्वत्र कंट्रोल की बात कर रही हो ना, संयम है और हमारा अभ्यास नहीं है। सामाजिक दृष्टि से, सोशल दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से हमारे मन, इंद्रियां, ये सब जो है वो रेस्टलेस हैं, तो ये अवश्य कंट्रोल होगा ही। डेफिनेट टेंशन होंगे, सब जगह टेंशन। सेकंड क्वेश्चन महाराज, गुड थॉट्स पर आपने इसका जवाब आंसर दे दिया अभी, तो गुरविंदर का सवाल था, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं थर्ड क्वेश्चन पर आता हूँ महाराज। देखो, गुड थॉट्स का ये है कि याद रखो, हमेशा गुड थॉट्स को बोलना है तो देश काल पात्र के अनुसार, यानी अगर एक्सप्रेस करना है बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। जो मर्जी में आए बोलने से काम नहीं चलेगा, इसलिए कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट। तीसरा भी तो है, पेज 229 पर, वी मस्ट रिमूव फ्रॉम आवर माइंड्स ऑल आइडियाज ऑफ वायलेंस, एंगर एंड हेट्रेड. We do not react but burn with indignation. This is extremely harmful. We must practice non-violence within ourselves first. महाराज, ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि we should react or not react. Situations होती हैं हमारी वर्ल्डली लाइफ में कि we should react or not react, क्योंकि हमारा स्पिरिचुअल माइंड कहता है कि हमारी पीस ऑफ माइंड जो है डिस्टर्ब होगी, हम react करेंगे। लेकिन व्यवहारिक जो मन है, वो वर्ल्डली माइंड है, वो कहता है कि वी शुड रिएक्ट, आई कैन रिएक्ट। तो ये कॉन्फ्लिक्ट को कैसे इसको रिजॉल्व करें? देखो रिएक्ट बिना संसार के काम किए जा सकते हैं, बिना रिएक्ट किए भी जी वो तो काम तो चलता है संसार का। अपनी रक्षा करना, कमाना, अपने कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। व्यवहार तो करना है आपको, लेकिन रिएक्ट नहीं करना। एक कहानी मैंने सुनी थी कि दो योद्धा थे, कई वर्षों से युद्ध करते लड़ते रहते थे, एनिमी थे, एक दूसरे के शत्रु थे। आखिरी युद्ध आया और युद्ध हो रहा था तो एक योद्धा नीचे जमीन पे गिर गया और दूसरा व्यक्ति उसको छुरा मारने ही और भाला मारने ही वाला था कि नीचे जो पड़ा हुआ था उसने थूक दिया। तो जो भाला मारने वाला था उसको इतना गुस्सा आया, उसको मारने वाला था, फिर रोक दिया, अपने भाले को रोक दिया और कहा कि जो उठ जाओ। क्या मतलब, मैं इतने वर्षों तक तेरे साथ युद्ध किया लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया, आज मुझे गुस्सा आ गया, अब मैं हार गया। ये गुस्सा क्या हुआ? ए सॉर्ट ऑफ रिएक्शन। डू नॉट रिएक्ट, कर्म कर्तव्य के रूप में करो, लेकिन किसी ने मुझे गाली दे दी है तो मेरा गुस्सा आ गया है, कोई मुझको प्यार करता है तो मुझे भी प्यार करने लग गया, ऐसा नहीं।
81993 महाराज तो ऐसा डू नॉट रिएक्ट, जी कंट्रोल अपने श्रम को करके व्यवहार करना चाहिए। जी रक्षा करना है, अब कमाना है, अपने कर्तव्य करते रहना है, लेकिन रिएक्शन नहीं करना। जी महाराज। तो उसमें है कि शुड बी रिएक्ट इंस्टेड ऑफ बर्निंग विद इंडिग्नेशन, या नहीं तो अदरवाइज जो क्रोध है आपके मन में रह जाता है, आपके हेट्रेड जो है आपके मन में, आपने उस पर तो कंट्रोल किया नहीं, लेकिन अगर आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो मन में रहेगा। अरे भाई वो दूसरे नहीं, वो तो रिएक्ट करने के बाद में भी क्या चला जाएगा? वो तो हमने स्वभाव बन गया है हमारा। हमें अपना आंतरिक स्वभाव परिवर्तित करना पड़ेगा। जी महाराज जी महाराज। काम क्रोध लोभ मोह हमारे भीतर है, उसको विचार के द्वारा दूर करना पड़ेगा जी महाराज। और तब जाके उस पर कंट्रोल होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। ये लंबी साधना की प्रोसेस है। महाराज कुछ डिसीजन जो है हम बड़े थॉटफुल डिसीजन लेते हैं इन इरेक्शन। जो कुछ डिसीजन है वैसा नहीं कि हम एंगर में लेते हैं या हेट्रेड में लेते हैं, लेकिन थॉटफुल डिसीजन होते हैं हमारे कि इस सिचुएशन में हमें इस वर्डली तरीके से हमें इस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, बट उसको भी हमें कंट्रोल करना चाहिए कि जहां नहीं जरूरत है वहां नहीं रिएक्ट करना चाहिए। ऐसा है कि ये सब क्या है कि इंडिविजुअल सिचुएशन पे निर्भर करता है। एक उसी प्रकार की सिचुएशन में आपको शायद बोलना पड़े, दूसरी प्रकार के उसी तरह के सिचुएशन में आपको शायद न भी बोलना पड़े। एक सिचुएशन में आपको डांटना पड़े किसी को, और दूसरे सिचुएशन में संभवतः ऐसा हो कि आप चुप रह जाएं तो भी काम चल जाए। तो इस प्रकार के एक एग्जैक्ट नियम बनाना कि किस सिचुएशन में कैसे करना, ये बड़ा कठिन है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा अंतर जो है, माइंड जो है, वो काम रहना। जी जी, हमारे इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, हमारे वर्ल्डली इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं जी मेरा इंटरेस्ट है, हमारा राइट बनता है, तो हम इसको करके अपना लेंगे। अब भाई अब तुम लोग जाना हो, मैं क्या बताऊं तुम्हें। Next question, page 230. We should burn away all our false hopes, false identification, pet ideas, all our false worldly aspirations, all our small, petty, greedy loves. This in fact demands real strength of mind and willpower. This is the gist of this article. Gist of the article of strength, कि हमारी जो रियल स्ट्रेंथ जो माइंड और विल पावर की है। अरे रीता तुम्हारे मोबाइल बंद करो, उसको म्यूट कर लीजिए प्लीज। रीता म्यूट योर माइक। हाँ बोलो सतीश। हाँ सतीश बोलो सतीश, अनम्यूट करो। सॉरी महाराज, सॉरी। हाँ अब आएगा। पेज 230 पर है, we should burn away all our false hopes, false identifications, pet ideas, all our false worldly aspirations, small petty greedy loves. This in fact demands real strength of mind and willpower. जब हम रियल स्ट्रेंथ ऑफ माइंड और विल पावर की बात करते हैं, तो हमारा जो विल पावर और माइंड जो है जहाँ एक्सरसाइज होनी चाहिए। बट वी आर इन ए कंफर्टेबल जोन एंड डू नॉट वांट टू लीव द कंफर्टेबल जोन। हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, तो हम उस जो कंफर्टेबल को छोड़ नहीं सकते। हम ये जो हमारे वर्ल्डली कंफर्ट्स हैं, पैटी पर जो है पैटी कंफर्ट्स है, डू नॉट वांट टू लीव। हाउ कैन वी प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ? How can we progress in spiritual? अब भाई अब तो मत करो। नहीं, तुम्हारा प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि ये तो करना पड़ेगा आपको, कठिन काम तो करना पड़ेगा। अब नहीं करना चाहते तो मत करो, उसका क्या है? प्रश्न क्या है? If you want to live in a comfortable zone तो रहो, उसे स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। जैसे हो वैसे के वैसे रहोगे। अच्छे चल रहे हैं तो चलने दो। और स्पिरिचुअल लाइफ में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, पेट डिजायर्स वगैरह को छोड़ना पड़ेगा,
बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मेंटल सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इच्छाएं, अपनी वासनाएं, अपने आइडियाज, इनको सब चेंज करना पड़ेगा। नहीं कर सकते हो तो मत करो, क्या करना है, उसका प्रश्न क्या है? जी महाराज, जी महाराज, आई गॉट द आंसर। हाँ जी, जी महाराज, प्रणाम महाराज, आई गॉट द आंसर। और एक प्रश्न और था तुम्हारा, तुमने ध्यान जप की बात पूछी थी। ध्यान जप से नहीं होगा। हाँ, ध्यान जप से नहीं होगा। जी जी क्या महाराज। है ना कि एक प्रश्न के एंड में कहा था कि कैन इट बी हैपन बाय मेडिटेशन एंड जप। जी 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 महाराज, जहाँ जी महाराज, जी महाराज, जी दिस वाज माय क्वेश्चन। क्या हम कंफर्टेबल जोन में रहे, ध्यान जप करते रहे, क्या उससे होगा? नहीं 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 नहीं, सिर्फ ध्यान जप से कुछ नहीं होता। जी महाराज, जी दिस वाज माय क्वेश्चन। ध्यान जब गहरा होता है ना तो आदमी को पागल बना देता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। देवाशीष, जी देवाशीष, क्या देवाशीष चला गया क्या? जी महाराज जी, उन्होंने लिखा है कि वो कहीं जाना था इसलिए वो चले गए, मैसेज में है। हाँ, वो चले गए हैं महाराज, उनका कोई इमरजेंसी था। अच्छा अच्छा, ओके ओके, चलो। निवेदिता, निवेदिता भी चली गई क्या? नहीं है, निवेदिता जी अनम्यूट कर लीजिए। पहला जो प्रश्न है, spirituality is going beyond is to go beyond mind and body, and we practice again and again, but when we fall sick immediately the body conscious comes back. What is the reason and how can we get rid of it? एवरी टाइम यू थिंक ऑफ भगवान का शोक तो तुम्हारे बॉडी कॉन्शियसनेस चली जाती है। ध्यान करते समय भी बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं जाती। अरे सारे जीवन में ध्यान करो या कुछ भी करो, बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं जाती। ऐसा मत समझो कि बीमारी के समय आ जाती है। यू आर ऑलवेज इन बॉडी कॉन्शियसनेस, सो डोंट थिंक लाइक दैट। यार प्रैक्टिस के समय भी वी डोंट गो बियॉन्ड बॉडी कॉन्शियसनेस। इवन इवर गॉड इज बॉडी। हमारे भगवान क्या है? रामकृष्ण है, शरीर में वो कपड़ा डाले हुए भगवान है। राम भी है, भगवान है, कृष्ण भी भगवान है। हमारे बॉडी कॉन्शियसनेस है, इसलिए हमने राम और कृष्ण को भगवान बना के हम उनकी पूजा कर रहे हैं। हम सब बॉडी कॉन्शियस के लेवल पे हैं। डोंट थिंक अबाउट गोइंग बियॉन्ड बॉडी कॉन्शियस। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, हाउ कैन बी अ हेल्दी बॉडी बी एसेट फॉर कंसंट्रेशन फॉर लॉन्ग टाइम व्हेन द सीकर्स हैज टू डिस्कार्ड द बॉडी कॉन्शियसनेस? अरे डोंट वरी अबाउट बॉडी कॉन्शियसनेस। मैंने कहा ना, अच्छी बॉडी रखो, ध्यान जप करो। बैठ तो सकते नहीं, सोच तो सकते नहीं, बैठ के अच्छे तरह ध्यान करो, घंटा 2 घंटा। हाँ, बॉडी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वामी विवेकानंद और यतीश्वरानंद जी सब बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे थे बॉडी को। फिर वो पहला वाला जो प्रश्न था ना, स्वामी जी सेड दैट इफ योर स्पिरिचुअल लाइफ इज गोइंग स्मूथली देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। आप अभी बताया कि स्पिरिचुअल लाइफ पूरा संघर्ष पूर्वक जीवन है। हाँ 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 हाँ, ये प्रश्न था। अच्छा, तो उसके बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है ना तुम्हारा तो। वाह, कितना बढ़िया चल रहा है। सावधान। हाँ जी, कुछ नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। जब आध्यात्मिक जीवन ठीक हो जाएगा ना, तब झचकोर देंगे। देयर विल बी एक्चुअली माइंड जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। एवरीथिंग इज स्मूथली गोइंग ऑन, गो लेट इट गो ऑन। और उसके बाद है, इट शोज देयर आर अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन यू, द कॉन्फ्लिक्ट्स अंडरमाइन द इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी। ये जो पेज नंबर 224 में है। वो मेरे पास नहीं है अभी, पेज नहीं है। हाँ, देखूंगा मैं, कुछ करना पड़ेगा उसको। हाँ बोलो, तो क्या बोला है? पेज नंबर 224 में 12वां लाइन है। फिर से पढ़ो ना, पढ़ो उसको।
इसमें है कि it shows there are unresolved conflicts within you, be it the conflicts undermine the integrated personality. हाँ, तो ये जरा ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब अनरिजॉल्व इनडिसीजन। अगर हमारे जीवन, तुमने पहला पोर्शन नहीं पढ़ा, इनडिसीजन, एबिलिटी टू टेक डिसीजन। हाँ, ये तुम नहीं पढ़ रहे हो। अगर तुम इंडिसीजन है हमारे जीवन में, हम कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका कारण यह है कि हमारे मन में अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हमारे भीतर बहुत सारे संघर्ष हैं, द्वंद्व हैं, क्या करना क्या नहीं करना, हमारी वैल्यूज क्या है उसके बारे में क्लियर नहीं है, इसलिए तुम क्लियर डिसीजन ले नहीं पा रहे हो। ये हुआ। अच्छा, तो इसमें क्या प्रश्न है तुम्हारा? क्लियर है? तो अब समझे। अगर तुम निर्णय नहीं ले पा रही हो तो सोचो कि क्या प्रॉब्लम है, मेरे में क्या प्रॉब्लम। Our attitude and strength should be such that others will not dare to take advantage of us. ये तो आपने बता ही दिया है, मतलब मेंटल स्ट्रेंथ किस तरह का। उसके बाद है we must be strong that others feel this strength. ये भी सेम ही क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन। People who are too soft, बोलेंगे people who are too soft without any grit will find spiritual life troublesome. हाँ, लोग कहेंगे अरे ढीला ढाला आदमी है, कुछ दम नहीं, अरे छोड़ो छोड़ो, ऐसा करेंगे, तुम्हारी बात मानेंगे, तुमको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। हाँ हाँ। अच्छा, उसके बाद है the when you give modern mind, हाँ ये नहीं समझा महाराज। When you give modern mind a kind and good God, it will throw him overboard. But when you give the real God, accept him. Page 229. जो ये बोल रहे ना सृष्टि स्थिति और प्रलय का, बीच में तुम थोड़ा सा पढ़ा है, उसके पहले का नहीं पढ़ा। हमारा आइडिया क्या है कि भगवान जो है करुणामय है और प्रसाद देता है हमको, भगवान बहुत अच्छा है, कि हम आरती करेंगे उसके बाद प्रसाद मिलेगा, हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर देगा, ये बड़ा अच्छा भगवान। ये ठीक है। आधुनिक लोग इस भगवान को नहीं मानेंगे, वो कहेंगे ये फालतू की बातें हैं, ये लोगों ने बना रखा अच्छा भगवान, अच्छा भगवान। और उसमें वो काली का भी वर्णन है आर्टिकल में, है कि नहीं? काली, हाँ, मदर का भी है, डिस्ट्रॉय करने वाली है। तो इसलिए कहते हैं कि रियल गॉड, एक्चुअल गॉड जो है वो ऐसा नहीं है, वो नरम भी नहीं है, गरम भी नहीं है, वो सब पे कृपा भी करता है, सबको दंड भी देता है, डिस्ट्रॉय भी करते हैं। रियल गॉड जो है वो तो सर्वव्यापी परमात्मा है, हमारा अंतर्यामी है। इस प्रकार का रियल गॉड मानोगे तो लोग स्वीकार। अच्छा, no physical suffering can be compared to the terrible tempest raging the human mind. ये जो लोभ की बात कर रहे हैं ना, मतलब फिजिकल जो सफरिंग होती है उससे ज्यादा बड़ी है जो माइंड में हम लोग का। होता है। तो मन के अंदर जो बाधाएं हो, मन में जो प्रॉब्लम्स उठती हैं वो कितनी भयानक होती हैं। भयानक होता है। अब लास्ट प्रश्न है कि ड्यूरिंग आवर मेडिटेशन वी हैव टू ड्राइव सेल्फ इनटू वेरी डेप्थ ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। मतलब ये है यू मस्ट फील, ना ऐसा है कि मेडिटेशन में बैठे रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, मन इधर उधर जाता रहता है, थोड़ा सा भगवान को किया, जप कर लिया, पूजा कर लिया, अब पूजा कर लिया वो सुपरफिशियल हो गई पूजा, तो भौतिक पूजा हो गई, अंदर गए कहाँ, अपना स्वरूप का चिंतन कहाँ हुआ, वो तो कुछ नहीं होता। वो सारा जीवन निकल जाता है धीरे से, रिचुअल किया, थोड़ा सा क्रिया अनुष्ठान, ये तो प्रिलिमिनरी होती है, उसके बाद थोड़ा सा थोड़ी देर तक लिया, जप के लिया,
और जब ध्यान करने बैठे तो धन इधर उधर मन उधर उधर भागते ही रहा। ऐसे ऐसे कुछ होता है क्या? इससे कुछ नहीं होता। मैं दिव्य, आई एम डिवाइन, आई एम डिवाइन, आई एम डीपली, मैं, ये ध्यान जो है ये अपने गहराई में जाना चाहिए। मैं दिव्य हूँ, ये गहराई में विचार जाना। असुन ए बापी एक चेयर दे दो। असुन यदि क्या असुन चेयर दे दो। हुआ कि नहीं? जी महाराज, क्वेश्चन हुआ? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, और किसी को है क्या? शिवानी है क्या? इतु जी महाराज, प्रणाम महाराज। व्हाट आर योर क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन है, श्री रामकृष्ण सेज दैट आई एम सर्वेंट एंड यू आर द मास्टर। सेव्य सेवक भाव is the best. It means duality. To realize our true self will take a long period of time. Meanwhile, how do we maintain fearlessness? अरे तो ये उसमें क्या है कि तुम जो है वो तुम्हारे भगवान के सेवक हो ना जी, सर्वेंट भाव है ना, ड्युअलिटी तो है। So what is your question? When you are duality है, तो उसमें what is that? सिंगल की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ड्युअलिटी जब है तब भी हम भगवान के भक्त हैं ना, हम भगवान के दास हूँ। मैं किसी की चिंता नहीं करता हूँ। हनुमान जी जो थे वो भगवान के दास थे, और वो भगवान के दास थे इसलिए कि मैं भगवान का, राम का दास हूँ। मैं किसी की चिंता नहीं करता हूँ, किसी को डर नहीं है बिल्कुल। ओ जी जी, तो ड्युअलिटी में वो फियरनेस से तो चली जाएगी, फियर चला ही जाएगा। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन वाज दैट, बोल रहे हैं ना कि जब भगवान के साथ एक बोध हो, एकात्म बोध हो, तब जो है डर चली जाती है। लेकिन अगर हम नहीं वो ठीक है, वो अद्वैत में भय चला जाता है, लेकिन जो भक्ति भाव जितने भी हैं उसमें भी अंत में व्यक्ति जो है वो ये समझता है कि मैं भगवान के साथ एक हूँ, भगवान मेरे जी, देह बुद्धिया तु दासो हम, जीव बुद्धिया त्वदंशक, आत्म बुद्धिया त्वमेवाहम् इति मे निश्चिता मति। मैं जब देह समझता हूँ तो प्रभु तुम दास हो, और वह उसमें भक्ति नहीं चाहिए, उसमें फियर चला जाता है। दूसरा है मैं आत्मा समझता हूँ, मैं तुम्हारा अंश हूँ, उसमें भी फियर नहीं होगा। और उसके बाद मैं और तुम एक हो जाएगा, उसमें भी फियर नहीं। तो तीनों लेवल में यहाँ पर तो इस संदर्भ में कहा गया है, ड्युअलिटी के संदर्भ में, अद्वैत की बात करने। लेकिन अगर आप भगवान के भक्त हैं तो भी आपको भय क्यों होना चाहिए? मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, बस पक्का। जी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है, we are advised to control even our good thoughts. Does this control means only to control our emotional feelings, or even to stop thinking, which is a thoughtless state? So is there no chance? No, it is not a question. So question is there no chance for a person to become mechanical? नहीं, मैकेनिकल पढ़ने का क्या प्रश्न होता है? तुम अपने विचारों को कंट्रोल करो, तो विचारों को एक दिशा में फ्लो कराओ। तो उसमें मैकेनिकल करने की क्या बात है? तुम अपने इष्ट का चिंतन करो, ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो, तो विचार कंट्रोल हो जाएंगे कि नहीं होंगे? जी जी। तो विचार कंट्रोल हो गए तो इसमें मैकेनिकल होने की क्या बात हुई? जैसे बोल रहे कोई थॉट्स नहीं होनी चाहिए, गुड भी हो और बैड भी हो। तो अगर कोई थॉट ही ना रहे, कहाँ पे? वो तो थॉट जो है कोई बिल्कुल थॉट नहीं होंगे, ये बहुत ऊंची बात है। अच्छा, वो तो एक थॉट तो होने जो, समाधि तो होने दो, उसके बाद में विचार खत्म चले जाएंगे। अच्छा, हाँ जी जी, ठीक है जी। अच्छा ठीक। और किसी के कोई प्रश्न है क्या? महाराज प्रणाम महाराज। हाँ शिवानी। हाँ जी महाराज। महाराज मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाई इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टास्क टू विन द ग्रेस ऑफ वंस ओन माइंड?
ये हो चुका था, पहले डिस्कस हुआ था ये। मैंने मिस किया था महाराज, थोड़ा सा बताएंगे वो तो अगर। डिस्कस हुआ था, उसके अंदर पूरा तरीके से हुआ था। तो मैंने प्रश्न ये है कि तुम्हारा माइंड जो है जब क्लास हो रही है उस समय तुमको वो छल करते कहता है कि तुम अभी नहीं क्लास अटेंड कर सकते, तुमको दूसरा काम करना है। तो ये मन ने छल किया कि नहीं? So your mind will always deceive you. ठीक है महाराज। हाँ, एक प्रश्न और है कि why it is dangerous to try to play at concentration and meditation? प्योर इम्प्योर माइंड में, बहुत इम्प्योर माइंड, इम्प्योर माइंड में, इम्प्योर माइंड की बात है, ये भी डिस्कस हो चुका था। अगर कंसंट्रेशन और मेडिटेशन अपवित्र मन से करोगे तो मन में शक्ति बढ़ जाएगी और ये सारी शक्ति जो है वो बुरे विचारों की तरफ जाएगी। रावण, बानासुर वगैरह जो थे वो बड़े बहुत ध्यानी थे, बहुत ध्यान करते थे, उनमें बहुत शक्ति थी दिमाग में, मन में, और इसी का इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा अकल्याण किया। ये बात ठीक है महाराज। ठीक है, ठीक है महाराज, थैंक यू। बंद करें। ठीक। शांति 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 राम कृष्ण स्वामी जी नमस्ते। सपना स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। all namaste to all. प्रणाम महाराज जी। सुब्रमण्यम, nothing you all. महाराज। प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज। Next time तुम वो करना है, you know that.